I am fine. What about you? Can you hear my voice? Morning, good morning, very good morning. Pura Tamara Nabila and all of you. Hope you are good, Sara Ali. So sometime this it will take a time to upload the lecture 5-6 minutes. So wait for it. The cloud is always roaming in a process, showing process that is working. Oh, present, ma'am. I am also present. Consider me present. So you 20 people are joined only. So we will have a last topic. Will you please tell me that what was our last topic? Keep yourself on track. So tell me what was our last topic. Even at 9 to 30, I took your time. 9 to 10, I took your class, and today recently it was the lectures, and you forgot what was our last topic. Mubin, tell me what was our last topic. क्या टाइप्स कुरतुल्लान व्हाट टाइप्स कौन सी टाइप किसकी टाइप वी लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग से ये हमने इनको सारी बड़ा डिटेल में लर्न किया है नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ लर्निंग राइट आमना thanks my purpose to ask you people just realize you that what is in your mind that at least you will be able to recognize what was our last topic. This is the purpose to ask you. So today we will talk about हमने ये सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया था लर्निंग स्टाइल पे बात की थी हमने कि लर्नर स्टाइल जो है विजुअल है म्यूजिकल है ऑडिटरी वर्बल फिजिकल कैनेस्थेटिक है लॉजिकल एंड मैथमेटिक है सोशल एंड सॉलिटरी है ठीक है सो व्हाट इज़ योर लर्निंग स्टाइल सो आप सब ने किया था किसी ने बताया था जी हम कौन होते हैं हम मैं फिजिकल हूँ सम आर सॉलिटरी सम आर सोशल सम आर लॉजिकल मैथमेटिक फिजिकल ठीक है it depends on the what is the role of the teacher you to recognize the student style preferred style so it will be easy to teachers to accommodate the problem and solve the issues regarding learning. So if there is a situation of the class, know your learner. You must know okay, what they need and what they are demanding according to the environment situation. You can see they need interaction. You need to keep them on the track. You keep them into the involvement, participations ताकि इस situation जो boring class pattern से जो है make it very interactive one. अभी हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ लर्निंग क्या है
learning can be different type depending on the developmental stage and mental capacity of the living being. ठीक है, तो इसमें जो है लर्निंग जो है डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन इस पे किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि स्टेज लर्निंग की आपकी क्या है। ठीक है, ये मेंटल कैपेसिटी ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, सो मैम नेक्स्ट पढ़ना है अब। हाँ, यस मोबिन। So we will learn about the type of learning. So some important type of learning are as follows. यानी sensitization and habituation में non associative learning है। ये दोनों कौन सी हैं? We consider as non associative learning। ठीक है, और associative learning होती है, observational learning है, inculturation learning है, मल्टीमीडिया लर्निंग है, ई लर्निंग, एम लर्निंग, रूट लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग और लर्निंग कॉन्शियस नॉन फॉर्मल लर्निंग। Okay, so first of all, we'll talk about the sensitization and habituation that are the non-associative learning. Psychology, the process of being highly sensitive to specific event or situation, especially emotion event or situations. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि इमोशनल इवेंट और सिचुएशंस के मुताबिक जो साइकोलॉजी में जो इसके लिए जो हाईली सेंसिटिव पॉइंट को जो सिचुएशंस के जरिए जो लर्निंग को किया जाता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें थ्रू प्रॉपर जो है प्रोसेस को हम इसको थ्यूज पढ़ते हैं, इवेंट को और इमोशंस को और सिचुएशंस को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सेंसिटाइजेशन जो है रेफर टू प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ रिस्पॉन्स when the stimuli is administered repeatedly to the living being. Bell et al. 1995। इसमें ये कहा गया कि अगर सेंसिटाइजेशन यानी कि आपको बहुत ज़्यादा तो आप बहुत ज़्यादा किसी आपको बार बार रिपीटेशन ऑफ किसी एक स्टिमुलाई की मिल रही है, तो डैट मे बी यू गेट बी वेरी सेंसिटिव। ठीक है, आप सेंसिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर रिपीटली हो जाएगी तो आप सेंसिटिव भी हो सकते हैं और हो सकता है आप में हैबिचुएशन भी हो जाए। वंस यू विल बी गेट बी आप इसका हैबिचुएट हो जाते हैं तो फिर आप इसको इतना बॉदर नहीं करते, लेकिन समटाइम यू आर वेरी सेंसिटिव टू रिगार्डिंग द सर्टेन स्टिमुलाई इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अडेप्टिव एज वेल एज द मेल अडेप्टिव लर्निंग प्रोसेस इन द ह्यूमन। ये अडेप्टिव भी हो सकती है और मेल अडेप्टिव भी हो सकती है, जैसे हैबिचुएशन इज अडेप्टिव एंड सेंसिटाइजेशन इज मेल अडेप्टिव। हैबिचुएशंस के बारे में लर्न करेंगे कि हैबिचुएशन जो है इज अ इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, जब हमें जब स्टिमुलस से हमारा रिस्पॉन्स जो डिक्रीज हो जाए आफ्टर रिपीटेड प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल अ न्यू साउंड इन योर एनवायरनमेंट सच अ न्यू रिंगटोन may initially draw your attention or even become the distracting. This diminished response is habituation. मेरे ख्याल है कि स्टेटमेंट से और इसकी स्लाइड से क्लियर हो चुका है कि जब आप किसी भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स से आपका जो रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है रिपीटेडली जो बार बार जो स्टिमुलस से, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैबिचुएशन कहते हैं। जैसे उसने एग्जांपल बताई है कि अगर एनवायरनमेंट के अंदर साउंड कोई ऐसा है या न्यू रिंगटोन है, जैसे न्यू रिंगटोन इनिशियली आप हो सकता है कि ड्रॉ योर अटेंशन, क्या ये क्या मे बी यू विल टेक बिकॉज यू आर लिसनिंग द फर्स्ट टाइम एंड इवन बिकम, ठीक है, ringtone may initially draw your attention or even become the distracting. This diminished response is जब आपका इसका रिस्पॉन्स बार बार सुनने से डिमिनिश्ड हो जाता है तो उसको हम कॉल क्या कहते हैं, हैबिचुएशंस कहते हैं। हम हैबिचुएट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम डॉग की बात करें तो ये जो डॉग है या जो पैवलॉव की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उसने क्या कि हैबिचुएट हो गया था ना। आपने देखा डॉग को बार बार उसमें जब उसको पता था बेल बजती है खाना आता है, तो जो उसकी जब खाने की स्मेल आती तो उसके सलाइवेशन जो हो जाती, तो उसने जो पैवलॉव ने जब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो उसने कहा कि हम किसी भी सर्टेन एनवायरनमेंट में जब हम लर्न कर जाते हैं, ठीक है, तो हमारी जो है मतलब एसोसिएशंस भी हो सकती है और हम सेंसिटिव भी हो सकते हैं और हैबिचुएशंस भी हो सकती है। एसोसिएटिव लर्निंग जो होती है, अब हम बात करेंगे कि इन एसोसिएटिव लर्निंग क्या है। करंट टीचिंग कंटेंट इज लर्न थ्रू इट्स एसोसिएशंस।
विद अ सेपरेट प्रीवियस लर्न कंटेंट। जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी हो तो हमेशा एक चीज़ को दूसरे, जैसे एनाटॉमी है तो हम फिजियोलॉजी के साथ करेंगे, ठीक है, केयर को फंडामेंटली लर्न करेंगे, हेल्थ को हेल्थ असेसमेंट के साथ नर्सिंग असेसमेंट को लिंक करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मल पैटर्न पता होगा तो यू कैन इजीली फाइंड द नॉर्मल पैटर्न। दिस टाइप ऑफ लर्निंग वाज एक्सप्लोर्ड थ्रू द क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। ये जो टाइप है इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग को भी हमने पढ़ेंगे और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट ऑन द एनिमल कंडक्टेड बाय पैवलोव एंड स्किनर, दोनों ने जो है एनिमल पर क्या किए थे, ये एक ने कैट पे भी किया था जो हम ट्रायल एरर से लर्न करते हैं, और दूसरे ने डॉग पे किया था जो नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है, यानी कि सेंसिटाइजेशन और हैबिचुएशंस की बात हो रही है। क्लासिकल कंडीशनिंग की जो पहले जैसे मैंने एक स्लाइड शो की थी उसमें हमने कहा था कि ये एक सिंपल डेफिनेशन, बाय द सिंपल डेफिनेशन अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग को समझना चाहें तो लर्निंग टू एसोसिएट अ बिहेवियर विद द स्टिमुलस, यानी कि हमारा ऐसा बिहेवियर जो स्टिमुलस से जो है, स्टिमुलस बिहेवियर से जो है एसोसिएट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व पेयरिंग एंड अनकंडीशनड स्टिमुलाई व्हिच कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस अ रिफ्लेक्सिव रिस्पांस, ठीक है। ये अनकंडीशन स्टिमुलस होती है जो कि जो प्रोड्यूस करती है रिफ्लेक्सिव रिस्पांस करती है। जैसे उसने डॉग के बारे में हमने डिस्कस किया है कि उसका जरा स्लाइवेशन शुरू हो जाती थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी इसको कहते हैं, ऑपरेंट भी बोलते हैं, ऑपरेंट भी बोलते हैं, सम टाइम रेफर्ड एज द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। इज अ मेथड ऑफ लर्निंग that occur through the reward and punishment of the behavior, mean through the positive reinforcement and negative reinforcement। ये मैं आपको पहले भी टीचिंग लर्निंग में भी, टीचिंग के कॉन्सेप्ट में भी आपको रीइंफोर्स के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव जो है मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि इसमें जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग ये थ्योरी जो है बीएफ स्किनर की है। इसने जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग जो तो थ्योरी, क्योंकि पैवलोव के साथ जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का भी जो है रिलेट किया गया है, ठीक है। सो इस ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन द बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर लेटर बिहेवियर, ठीक है, कि कॉन्सिक्वेंसेस को बिहेवियर के साथ हम क्या कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं ताकि जो है डिजायर बिहेवियर को इम्प्रूव किया जाए और अनडिजायर बिहेवियर को स्टॉप किया जाए, ठीक है। ताकि डिजायरेबल बिहेवियर को शेप देने के लिए हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं थ्रू द वर्बल एप्रिसिएशंस, थ्रू द रिवार्ड एंड एनीथिंग्स, ठीक है। और जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है बाय स्टॉपिंग एंड इंटरप्टिंग और वट एवर पनिशमेंट, ठीक है। सो हम ये अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं, यू कैन रीड एंड एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ about, because you have already learned in the psychology subject about this theory in maybe in very detail more than me, because it's my part is little to attach related to the learning, but maybe this theory is a different topic that maybe you may have a more knowledge, while you have the when you learn this topic। ओके, सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की अब हम बात करते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज बेस्ड ऑन इमिटेशन, जो हम कॉपी करते बेस्ड ऑन इमिटेट करते हैं। चाइल्ड लर्न बाय ऑब्जर्विंग हिज पेरेंट एक्टिविटीज एंड ट्राई टू इमिटेट इट, ठीक है। जैसे बच्चे जो हैं क्या करते हैं, अपने पेरेंट को कॉपी करते हैं। Similarly, a student nurse observes staff nurses performing nursing procedures and care of the patient in the clinical area। ऐसे ही सेम हम देखा जाए तो स्टाफ नर्सेज जो हैं, स्टूडेंट नर्सेज हैं, वो स्टाफ नर्सेज को जो है ऑब्जर्व करती हैं परफॉर्मिंग, जब वो कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना हो या पेशेंट को केयर क्लिनिकल एरिया में देना हो तो वो किसको ऑब्जर्व कर रही होती हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वाई ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस सब्जेक्ट, बिकॉज हम एज ए नर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल वी आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग, वी आर लर्निंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस। सो जैसे इसने एग्जाम्पल दी कि स्टूडेंट नर्स जो है स्टाफ नर्सेज से लर्न करती हैं, एंड शी लर्न्स अ नंबर ऑफ नर्सिंग स्किल्स बाय इमिटेटिंग व्हाट शी हैज ऑब्जर्व्ड। It is therefore necessary that the staff nurses and nursing faculty should act as a role model because students learn by the observing them। इसलिए उसने कहा है कि आपने देखा कि जो होते हैं द नंबर ऑफ नर्सिंग स्किल जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्टूडेंट जो है वो इमिटेट करते हैं, उनको देखते जैसे वो कर रहे होते हैं
उनको वो वैसे ही परफॉर्म करने की ज़रूरत करते हैं। इसलिए नर्सिस को क्या ज़रूरत है, और नर्सिंग फैकल्टी का जो रोल मॉडल है कि वो एक स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल्स को एज अ रोल मॉडल अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करे, ताकि जो स्टूडेंट उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं दे आर बेटर लर्नर और बेटर ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टिव लर्नर्स, ठीक है, ताकि जो है उनकी जो है स्किल्स में जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं that can be enhanced through the that as a taking yourself as a role model. Inculturations की बात करें, it is the process by which a person learn this native culture. This process help the individual to learn and acquire those social skills, value and behavior that are necessary in the culture. It ensure competency in the mother language, value, tradition, social interaction, and ritual of the culture. Similar, nurse students learn nursing culture through this process. ठीक है। इनकल्चरेशंस की बात करें तो नर्स जो है, हम देखें तो ये एक ऐसा पर जिसमें पर्सन जो है अपने नेटिव कल्चर से लर्न करता है। ये प्रोसेस कैसे इंडिविजुअल की हेल्प करता है, तो लर्न करने के लिए एक्वायर दो सोशल स्किल्स, वो इससे क्या करता है, सोशल स्किल को लर्न करता है, वैल्यू और बिहेवियर को लर्न करता है, दैट इज रियली जो इम्पोर्टेंट कल्चर में इम्पोर्टेंट होता है। और इससे क्या करता है, माँ जो ये इंश्योर करता है कि मदर लैंग्वेज, वैल्यू, ट्रेडिशन, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, एंड रिचुअल ऑफ द कल्चर, ठीक है। इससे जो है आप जो है उनमें ये सारी चीज़ों को आप लैंग्वेज सीखते हो, वैल्यू को भी देखते हो, अपने ट्रेडिशंस को, हमें रस्मात को है जो बिहेविंग एंड सोशल वे ऑफ सोशल इंटरेक्शंस विद द इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी, और जो कल्चर के रिचुअल के मुताबिक जो है दे आर लर्निंग, बिकॉज जो है इसमें पर्सन जो है वो अपने नेटिव कल्चर से लर्न कर रहा है। इसलिए सिमिलर नर्स स्टूडेंट लर्निंग कल्चर थ्रू दिस प्रोसेस। ऐसे ही जो है नर्स भी लर्न करती है अपने कल्चर से, अपने प्रोफेशन से, अपने लोगों से, अपने सीनियर से, अपने टीचर से, ठीक है। सो दिस इज वाई द इनकल्चरेशन इज इम्पोर्टेंट एज अ टाइप ऑफ लर्निंग। अंडरस्टैंड? मल्टीमीडिया जो लर्निंग है, इसमें हम पढ़ते हैं कि मल्टीमीडिया लर्निंग इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ऑडिटरी एंड विजुअल मीडिया टू लर्न इंफॉर्मेशन। जो मल्टीमीडिया लर्निंग है इसकी जो बेस है वो ऑडिटरी और विजुअल लर्निंग है, जो कि हम इंफॉर्मेशन जो इससे लर्न करते हैं, इसलिए हम इसको हम मल्टीमीडिया से भी करते हैं, जो चीज़ें देखते हैं और सुनते हैं, ठीक है, इससे भी लर्न करते हैं। समटाइम वीडियो की शेप में, बस समटाइम न्यूज़ की शेप में, बस का हम देखते भी है, कुछ चीज़ों को हम देख कर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल के जरिए भी हम लर्न करते हैं। अब ई लर्निंग और एम लर्निंग की मे बी यू हैव अ न्यू कंसेप्ट। अब ये सारा सिस्टम जो हम लर्न कर रहे हैं ये एम लर्निंग और ई लर्निंग है, ठीक है। हाँ, जो इंटरनेट जो चीज़ें हैं, जो थ्रू द इंटरनेट हम जो लर्न कर रहे हैं, 3G टैब के जरिए, जो 4G के जरिए हम जो चीज़ें लर्न कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, ई लर्निंग और एम लर्निंग करते हैं। सो ई लर्निंग और एम लर्निंग जो है, ई लर्निंग इज अ इंटरनेट बेस्ड लर्निंग विच इज फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर, 3G टैब विच आर नेटवर्क थ्रू इंटरनेट, ठीक है। जो हम कंप्यूटर से या 3G टैब वगैरह से जो नेटवर्क के जरिए थ्रू लर्न करते हैं उसको हम ई लर्निंग कहते हैं। टू नाउ डे A similar term is arising is a M learning. So M learning क्या है, ये मोबाइल टेली कम्युनिकेशन, आपने देखा मोबाइल के जरिए आप किस तरीके से लिंक हो जाते हैं विद द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डैट इज ई लर्निंग जो है हमारी 3G कंप्यूटर वगैरह आ जाते हैं, लेकिन एम लर्निंग के अंदर जो हमारे क्या जाते हैं, मोबाइल टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं, डैट इज कॉल्ड I'm taking class. Wait. So, for example, when a staff nurse encounter a new drug in her patient prescriptions, she can use her mobile phone to learn immediately about that new drug, either through the software installed in the mobile or by connecting with the
थ्रो द मोबाइल GPRS, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि जब कोई भी मोबाइल के यूज़ का जो बेनिफिट है कि जब हमें कोई भी पेशेंट की जो ड्रग प्रिस्क्राइब होती है, जब हम उनके रूट का ना पता हो, डोज का ना पता हो, या हमें कोई भी क्वारीज हो, आपका इफेक्ट का पता करना, साइड इफेक्ट का पता करना है, ठीक है, तो इमीडिएटली जो है वी कैन सर्च थ्रू आवर मोबाइल इमीडिएटली, ठीक है। या तो आप उसके लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जब वाई जो हम ये जो अभी कनेक्ट करके हो रहे हैं ये जो सारे, तो इसको GPRS ग्रेट पॉकेट रेडियो, पता नहीं इसमें ऐसे क्या बनता है, मैं भूल गई हूँ, ठीक है, मैं आपको भी बता देती हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं GPRS ग्रेट पॉकेट रेडियो सर्विसेज, ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। सो इससे बनता है जो हम देख रहे थे, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, मैं ठीक कह रही थी, पैकेट जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज इसको कहते हैं, ठीक है। इसके जरिए जो है हम कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ये एम लर्निंग करते हैं, जो थ्रू मोबाइल जो हम जो भी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं फॉर द इंटरनेट कनेक्शंस, दिस इज कॉल्ड एम लर्निंग। समझ आ गया ई लर्निंग और एम लर्निंग की। सो हम इसके जरिए, ये भी एक लर्निंग की टाइप है, दैट्स व्हाई इट्स अ टाइप ऑफ लर्निंग। रोट लर्निंग क्या था? रोट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच द स्टूडेंट ट्राइज टू लर्न द content by repetitively memorizing it without understanding the meaning and inferences of the concept, ठीक है। रोट लर्निंग में स्टूडेंट क्या करते हैं, वो मेंटली तौर पर उसको बस रट्टा लगाते हैं कि रट्टे वाली है। रोट को क्या कहते हैं, रट्टा मैम लर्निंग। रट्टा लर्निंग में क्या करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किए बगैर या उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड किए बगैर, द इन्फ्लुएंसेस ऑफ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किए बगैर इसको मेमोराइज करते हैं बाय कंटेंट बाय repetitively memorizing. The purpose of rote learning is to recall the content in the university examination to write the answer. ये आपके लिए इस वक्त फायदेमंद हो सकते हैं कि जब आपने एग्जाम पास करना है, बट वंस द स्टूडेंट राइट द आंसर इन द एग्जाम, he or she forget the memorized content within the few days. Rote learning has been criticized by some school of thought, by it may be necessity in many situations, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो जो रट्टा वाली लर्निंग का जो मकसद होता है वो एग्जाम पास करने के लिए तो हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए, लेकिन इसके लिए जो है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब आप एग्जाम में निकल के बाज का, तब लोग बच्चे क्या कहते हैं, प्लीज़ वो पहला वाला वर्ड बता देना कुछ, फिर मुझे ना सारा याद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि रट्टा हो सकता है कि उसको भी ना आता हो, ठीक है, और हो सकता है वो अपने कॉन्सेप्ट से लिख रहा हो या उसने उस तरह से रट्टा नहीं मारा हो। तो अगर आपको वो पहला लफ्ज़ याद नहीं आएगा तो आप कभी भी लिख नहीं सकेंगे, ठीक है। इसलिए डू ऑलवेज थिंक, ट्राई टू लर्न थ्रू द क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग विद द इंसाइट एंड कॉग्निटिव एबिलिटी, ठीक है, ताकि जो आपके पास जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रह सके। इसलिए मैंने आपको टीचिंग और लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो वेरी डिटेल के अंदर मैंने आपको करा दिया, ताकि आपको समझ आ जाए कि टीचिंग लर्निंग के क्या असूल होते हैं, किन चीज़ों पे, जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी
चीज़ होती है ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स पे बनती है, यानी कि आप डिफरेंट आइडिया, थॉट, ओपिनियन मिलकर एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिस पर हमारी अजम्पशन भी होती है, फिर उसको साइंटिफिक प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर जाके एक थ्योरी बनती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है मिलकर एक जो आपको जो आपने का जो एक अपने स्ट्रक्चर शेप देना होता है, या एक अपने मॉडल प्रिपेयर करना होता है, या कोई भी आपने मॉडल को अंडरस्टैंड करना होता है, आप उसमें डिफरेंट चीज़ों को डाल के एक मॉडल को प्रोड्यूस करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज एंड स्किल्स. So rote learning has been criticized by school of thought, but it may be necessity in many situations. ठीक है, तो इसको क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन सम टाइम ये ज़रूरत भी हो सकती है, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो मुश्किल हो जाएगी. लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द लर्न विद द क्लियर कॉन्सेप्ट. इनफॉर्मल लर्निंग के बारे में अगर हम बात करें, तो इनफॉर्मल लर्निंग इज रिलेटेड विद आवर एक्सपीरियंसेस ऑफ डे टू डे लाइफ. फॉर एग्जांपल, one would learn not to immerse the finger in boiling waters because of the obvious risk of the burn and pain. Therefore, the informal learning means learn from the life which requires no school, no professional teachers, or one can learn during play with peers and talk with parent at the dining table. ये जो इनफॉर्मल लर्निंग है, ये हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी से चीज़ों, दूसरों से चीज़ों को सीख रहे होते हैं, स्कूल से सीख रहे हैं, टीचर से सीख रहे हैं, ठीक है, या हम किसी प्लेग्राउंड में हैं, या किसी भी हम अपने पीयर्स के पास पीयर्स में बैठे हैं, फेलोज के साथ बैठे हैं, या फिर अपने डाइनिंग टेबल पे अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, तो हम एक दूसरे से एक्सपीरियंसेस के बेस पे क्या करते हैं, शेयरिंग के जरिए जो है, सोशल इंटरेक्शन के जरिए एक दूसरे से लर्न कर रहे थे. इन्वायरमेंटल लर्निंग भी कह सकते हैं. जैसे उसने एक एग्जांपल दिए कि आपने देखा कि कोई भी अब आपको कहेगा कि बॉइलिंग वाटर के अंदर फिंगर डाले, तो आप नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जल जाएगी, बर्न हो जाएगी और पेन होगी, ठीक है. इसी तरीके से हम बहुत सारी ऐसी लर्निंग करते हैं जो हम दूसरों के जरिए लर्न करते हैं, और वो काम नहीं करते. जैसे हम किल नहीं करेंगे, हमें पता किलिंग इज ठीक है सिन है, ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें ये पता, ये हमने चीज़ें सीखी हैं, हमने दूसरों के जरिए शेयर किया, हमारे पास होली बुक्स हैं, हमने बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं, माशरे में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती. ये बहुत सारी चीज़ों को जो है हम इनफॉर्मल लर्निंग में लेते हैं, जो कि हम एक जिसके लिए जो है प्रॉपर जो है, जैसे अगर मोस्टली एग्जांपल ली जाए, तो हमने जैसे इसके लिए कोई स्कूल या कोई प्रोफेशनल टीचर की ज़रूरत नहीं होती है, हम एक दूसरे से लर्न करते हैं कैजुअल रिलेशनशिप की बेस पर. सो फॉर्मल लर्निंग और लर्निंग कॉन्शियस जो है, ये सेम ही चीज़ है. फॉर्मल लर्निंग टेक प्लेस इन द स्कूल और कॉलेज ऑफ नर्सिंग. जैसे अभी आप ले रहे हो, ये कौन सी है, फॉर्मल एजुकेशन है, जिसमें प्रॉपर क्या है, करिकुलम है, जिसमें आप प्रॉपर लेक्चर्स हैं, कोर्स के कंटेंट हैं, ठीक है, टीचर है, तो स्टूडेंट्स हैं, ये सारे हम क्या करें, इसको कहते हैं फॉर्मल लर्निंग और लर्निंग कॉन्शियस. फॉर्मल लर्निंग जो है टेक प्लेस इन द स्कूल और कॉलेज ऑफ नर्सिंग विच रिक्वायर अ स्ट्रक्चर करिकुलम फॉर द स्टडी, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन विच द टीचर इज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग. इट इज एजुकेटिव लर्निंग रादर दैन द अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, ये क्या है, एजुकेटिव लर्निंग है रादर दैन द अक्यूमुलेशन. एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट टीचिंग के बेस है. दिस इज consciousness of learning among students that they are engaged in tail learning. Learning itself is the task, but formalized learning make learn more conscious in order to enhance it. ठीक है, सो ये जो सारी लर्निंग है, जो हम जो है कॉन्शियसली लर्न करते हैं, कि हम क्या करते हैं, खुद को एंगेज कर लेते हैं विद इन द लर्निंग, ठीक है, ताकि हम कॉन्शियसली मेंटली कॉग्निटिव इंसाइट से जो है वो चीज़ों को प्रॉपरली तरीके से कर सकें और लर्न कर सकें, टू एनहांस आवर बेटर लर्निंग और बेटर कॉन्शियस. अब हम बात करेंगे नॉन फॉर्मल लर्निंग की. नॉन फॉर्मल लर्निंग जो है, नॉन फॉर्मल लर्निंग इज अ ऑर्गेनाइज्ड टाइप ऑफ लर्निंग which occur outside the formal learning system. It involves a group of people have a similar interest coming together and learning through the exchanging idea and viewpoint. For example, workshop, conference, and faculty club.
नॉन फॉर्मल ऐसी लर्निंग होती है कि ये फॉर्मल थी, लेकिन हम एक्सपर्ट लोगों को जो है दे आर कमिंग टुगेदर विद फॉर टू एक्सचेंज देयर आइडियाज। जैसे कॉन्फ्रेंस होती हैं, लोग अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी ले रहे थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी शेयर कर रहे थे। इसको कहते हैं नॉन फॉर्मल लर्निंग। सो बेसिक लर्निंग जो हमने ये सारे हमने टाइप ऑफ लर्निंग पढ़ ली है। अभी बेसिक लेवल ऑफ लर्निंग में जैसे रोट है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन है, कोरिलेशंस करते हैं। रोट में जैसे हमने पढ़ा था, हम क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं फॉर द पासिंग द एग्जाम, बट मे बी ड्यूरिंग द एग्जाम यू विल फॉरगेट व्हाट वाज द नेक्स्ट एंड व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, and you will miss all the learned content. So understanding, to comprehend or grasp the nature of meaning and something. अंडरस्टैंड जो करते हैं थ्रू द डीप इनसाइट के जरिए, जो हम चीज़ों को है जो है कॉम्प्रीहेंड करते हैं और उनकी नेचर और मीनिंग को भी ग्रास्प करते हैं। एप्लीकेशन एक्ट ऑफ पुटिंग समथिंग टू यूज दैट हैज बीन लर्नड एंड अंडरस्टूड। ठीक है, कि जो चीज़ें भी हमने लर्न किया आप उसको यूज करते हैं थ्रू एप्लीकेशंस। Correlation, associations, associating what has been learned, understood and applied with the previous or subsequent meaning learning। उसको हम कोरिलेट करके भी लर्न करते हैं। दैट आर द बेसिक लेवल ऑफ लर्निंग। अभी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है जिसके बारे में हम करेंगे। हम जो लर्निंग स्टाइल्स हैं, जो लर्निंग थ्योरीज हैं, हमने जो डिफरेंट जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग के मॉडल को दिया। हम लर्निंग के मॉडल पढ़ेंगे। लर्निंग के बेशुमार मॉडल हैं। आप देखेंगे, मेरे ख्याल है कि बहुत सारे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे तो मैं आपको करा दूंगी, लेकिन बहुत सारे आप खुद भी कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन सा लर्निंग मॉडल आ जाए। ठीक है, कॉल्ब लर्निंग, ये जो है गिब्स का मॉडल है, कॉल्ब का मॉडल्स है। ठीक है, जो है अशोर मॉडल है, और ई लर्निंग सॉरी जो है 5 लर्निंग मॉडल्स है। ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो मैं आपको कराऊंगी। जैसे बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, उनके भी मॉडल्स हैं। हम उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉल्ब और गिब्स का जो है साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉल्ब का लर्निंग स्टाइल्स, इसके स्टाइल्स भी हैं और इसके स्टेजेस भी हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर द नॉलेज इज क्रिएटेड। लर्निंग प्रोसेस होता है जबकि नॉलेज क्या है, क्रिएट थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सपीरियंस। जो हमेशा नॉलेज जो है कैसे क्रिएट किया जाता है, थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। जब हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके दूसरों तक करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। कॉल्ब लर्निंग थ्योरी डेफिनेशन जो है, हमने देखा कि कॉल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी वर्क ऑन द 2 लेवल। ये 2 लेवल पे काम करती है। 4 स्टेजेस साइकिल ऑफ लर्निंग, 4 स्टेजेस साइकिल है एंड 4 सेपरेट लर्निंग स्टाइल है। स्टेजेस साइकिल्स हैं और लर्निंग स्टाइल्स हैं। कौन से हैं स्टेजेस साइकिल, लिख लें प्लीज अपने, या इस स्लाइड्स के आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड लेटर जब आप रियलाइज करें या इसको आप इसको एसोसिएट करें विद द दोनों लर्निंग के स्टेजेस और स्टेजेस साइकिल और लर्निंग स्टाइल को, तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, सो लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय द नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द एक्सपीरियंस। सो हम इसके पढ़ेंगे 4 स्टेजेस कौन से हैं, और इसके जो है 4 स्टेजेस साइकिल और 4 स्टेजेस लर्निंग स्टाइल्स दोनों ही देखेंगे। इज द प्रोसेस वेयर बाय द नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ये देखें, इसके क्या हैं, ये स्टेजेस हैं इसकी। कंक्रीट एक्सपीरियंस है डूइंग और हैविंग एन एक्सपीरियंस। कोई भी चीज़ हम कंक्रीट फॉर्म में जब चीज़ को करते हैं तो हम सीखते हैं। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी कि कोई चीज़ को जब हम ऑब्जर्व करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस, फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, प्लानिंग, ट्राइंग आउट व्हाट यू नीड व्हाट यू हैव लर्न। कि आप देखते हैं कि एक्टिव एक्सपेरिमेंट क्या आपने जो लर्न किया है दैट इज रियली इम्पोर्टेंट और अप्रोप्रिएट।
अब हम बात करेंगे ना कंक्रीट की, तो ये इसमें क्या चीज़ है कि बीइंग इन्वॉल्व इन न्यू एक्सपीरियंस, जब आप न्यू एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व होते हैं, न्यू एक्सपीरियंस ऑफ अ सिचुएशन इज इनकाउंटर्ड और री इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस, जब हम होते हैं तो हम प्री एग्जिस्टिंग जो अपना एक्सपीरियंस जो पहले से हमारे री इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जो आपके पास होता है, फिर हम उसके साथ क्या करते हैं, उसको उससे रिलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई पहले जैसे आपने कोई स्किल सीखी है, तो जब आप जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कंक्रीट फॉर्म में जब पेशेंट को केयर देने जाएंगे, ठीक है, तो आप उस नॉलेज के साथ री इंटरप्रेट करके जो आपका पहले से नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके साथ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी ये कंक्रीट फॉर्म में जो फिजिकल फॉर्म में जो आपकी जो लर्निंग होती है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे, डायरेक्ट एक्सपोजर पे होती है, ठीक है, आपकी इन्वॉल्वमेंट के साथ होती है, जब आप नए एक्सपीरियंस में इनकाउंटर होते हैं। समझ आई इसकी? जी, okay, Nisa. So, any else, if they have any query regarding this golf cycle? Yes, ma'am. Mariam Mukhtar, Nudrat, Ramsha, Rimsha, sir. Rimsha Javed. Yes, ma'am. Okay. Three people replied already. That means most of people they can understand this. Nabila. हमने बात की थी कि कंक्रीट एक्सपीरियंस में ये क्या होता है, जब भी हम किसी नए एक्सपीरियंस में हमारे इनकाउंटर होता है, तो हम जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी उसका री इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस के साथ री इंटरप्रेट करके उस नॉलेज को अडेप्ट करते हैं। सो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जब वॉचिंग अदर और डेवलपिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट वंस ओन एक्सपीरियंस, क्या इसमें क्या करते हैं, दूसरों को देख के और अपनी ऑब्जर्वेशन के जरिए अपने एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, जो है नया एक्सपीरियंस लेते हैं ऑफ न्यू एक्सपीरियंस ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसीज बिटवीन द एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसमें हम दूसरों को देख के और खुद को अपने आप को देख के, तो हम नॉलेज को ऊपर क्या करते हैं, खुद को भी वॉचिंग अदर्स और डेवलपिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट वंस ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशंस, ठीक है, इसमें क्या क्या क्रिएटिंग थ्योरीज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या करते हैं, हम थ्योरीज को क्रिएट करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम थ्योरी को क्रिएट करते हैं। रिफ्लेक्शन गिव राइज टू द न्यू आइडिया एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि रिफ्लेक्शन एक ऐसा जो एक मतलब आपको ऐसा अंडर मॉडिफाई रिफ्लेक्शन के जरिए मॉडिफाई करते हैं और क्या करते हैं, गिव द राइज टू द न्यू आइडिया, इससे आपको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं ताकि आप उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एन एग्जिस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट, जो कि आपका सिर्फ मालूमाती तौर पर जो होती है चीज़ें होती हैं, आप उसको क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्वेशंस के जरिए आप उसको थ्योरी क्रिएट करके आप उसमें और आइडिया और ओपिनियन को भी ऐड करते हैं, ठीक है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन जो है, यूजिंग थ्योरी टू सॉल्व प्रॉब्लम and make decisions, the learner applies them to the world around them to see what result, ठीक है, कि फिर उन थ्योरीज को क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ताकि ये लर्नर ये लर्न कर सकें कि वो जो उन्होंने जो लर्न किया अराउंड द वर्ल्ड टू सी द व्हाट रिजल्ट, कि इनके क्या रिजल्ट है, ठीक है। And if they are any have an during the experiment gap, they can have on getting the evaluations or they can again to re-practice all the things, ठीक है। जैसे हम नर्सिंग एवेल्युएशन में देखते हैं कि अगर कोई लेकिंग होती है या गैप होती है तो हम दोबारा से इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे साइकिल्स पे भी बढ़ेंगे, हमने जो स्टेजेस पढ़ी हैं, स्टेजेस में क्या क्या होता है, ये हमने सारा बड़ा डिटेल में इसके सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। सो 47 इज ऑलरेडी, so let me have the attendance.
हेलो। Okay, so take care of you. Whatever I told you or teach you, please keep it in your mind. And when we will start, keep it that in your mind that where we'll start and what where we left, and this is very important. सो प्लीज़ मैंने जो भी आपको पढ़ाया इसको याद रखें अच्छी तरीके से, ताकि मैं जब भी आपसे पूछूं कि हमें कहाँ से छोड़ा था, क्या स्लाइड थी हमें, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि आपने कितना अफेक्टिवली लिसन किया है मेरे लेक्चर को, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी आई एम यूजिंग इन द क्लास। सो वुड लाइक टू आस्क द check the mind of the student, how much they are attentive listening in my class. Clear? So okay, take care of you. बासन इधर सादिया ये कैंडल्स लेना में कितना 10 मिनट पूरे लग जाते हैं, है ना। तो ऐसे वो बच्चों को देख देख के किसका एक वो अल्फाबेटिकली नाम नहीं ना, वैसे इनको ऐसा कुछ करना चाहिए, एक लिस्ट पूरी आ जाए। हाँ सही बात है ना। हाँ बड़ा मुश्किल ऐसे देखना, 10 मिनट लग जाते हैं।